بھدرواہ میں مقدس مہینے رمضان کے موقع پر لوگوں کو سحری کے لیے جگانے کی قدیم روایت برقرار ہے۔ سحر خواں ڈھول بجا کر روزے داروں کو نیند سے بیدار کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نمائندے سائر حسین کی یہ رپورٹ۔ رات کے اندھیرے میں جب سڑکیں سنسان ہوتی ہیں اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں، منظور احمد اور ان کے ساتھی بھدرواہ کے مختلف رہائشی علاقوں میں گھوم گھوم کر روزہ داروں کو سحر کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ منظور احمد رات کے 2:30 بجے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ڈھول بجانے کے ساتھ ساتھ نعت شریف اور شیخ العالم کے اشعار بھی پڑھتے ہیں۔ منظور احمد پچھلے 30 برسوں سے وقت سحر کی صدا لگا رہے ہیں۔ ہمارے بھدرواہ میں صدیوں سالوں سے چلی آ رہی ہے، بہت بزرگوں نے کی ہے، اب ہمیں بھی 25-30 سال ہو گئے۔ اس سحری کا مطلب ہے لوگوں کو جگانا، اس مہینے میں عبادت کرنا، امن بھائی چارے محبت کا پیغام دینا۔ ہمارا مقصد یہی ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ جو ہماری زیارت ہے میلہ قلعہ کی، یہاں سے لے کر اوپر نالے چمبا روڈ میں جہاں تک لوگوں کو آواز پہنچ نہیں سکتی ہے، وہاں سے حالیہ موڑ تک، حالیہ سے بھی پاسری مسجد سے ہم گندر صاحب زیارت، وہاں سے جامع مسجد اور جامع مسجد سے سیدھا زیارت پر پھر پہنچتے ہیں۔ حالانکہ موجودہ دور میں لاؤڈ اسپیکر، ڈیجیٹل الارم، موبائل فونز و دیگر آلات دستیاب ہیں، لیکن مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ سحر خواں کے ذریعے یہ قدیم روایت بھی برقرار رہنی چاہیے۔ تمام لوگوں کو انتظار بھی رہتا ہے کہ ماہ رمضان آئے گا اور سحر خان نکلیں گے روایتی طور پہ، تو بہت اچھی سی فیلنگ آتی ہے۔ بہت ڈیفرنٹ سا ایک کانسیپٹ ہے یہاں کا، ایک روایتی طور پہ منایا جاتا ہے ہر بار۔ حالانکہ آج کے دور میں نئے گیجٹس آ چکے ہیں، لاؤڈ سپیکرز پہ بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، لیکن تاہم پھر بھی لگتا ہے کہ ادھورا رہے گا ماہ رمضان اگر سحر خان کی آمد نہ ہو سکے۔ یہ سحر خواں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ثواب کے حصول کے لیے وہ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں اور اس خدمت سے انہیں سکون ملتا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے بھدرواہ سے سائر حسین کی رپورٹ۔ ماہ رمضان امن کا پیغام کے عنوان سے ماگام میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا تھا۔ شیعہ و سنی علماء نے سیمینار میں شرکت کی۔ اس کی صدارت پارٹی کے چیئرمین آغا سید عباس رضوی نے کی۔ مقررین نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ علماء نے اخلاقی تعلیمات پر زور دیا۔ افطار پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا ہے، اور یہ مہینہ واقعاً ہمیں اپنے نفس پہچاننے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ دین اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام محبت کا دین ہے، دین اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، دین اسلام وائلنس کرنے کا دین نہیں ہے، دین اسلام پناہ دینے کا دین ہے۔ رمضان المبارک جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ امن رہے، اتحاد رہے، اتفاق رہے۔ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کھانا پینا ہم اس مہینے میں چھوڑ دیں، بلکہ ہر ایک وہ گناہ، ہر وہ چیز جس سے خدا کا رسول ناراض ہوتا ہو، اس چیز کو ترک کرنا ہے۔ اسلامک بیت المال کی جانب سے پٹن میں نعت مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے سلسلے میں یہ نظم کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں کافی تعداد میں بچوں نے حصہ لیا۔ پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ علماء اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے نعت خوانی کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی بھی تلقین کی گئی۔ ادھر
कोशर अदबी फोरम शोपिया ने नातिया मुशायरे का इनकाद कराया। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में ये नज़्म किया गया था। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए 20 के करीब शुरा ने उर्दू में अपनी शायरी पेश की और माह मुक़द्दस की फजीलत बयान की। जलसे की सदारत मुमताज़ शायर और इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद याकूब ने की। पिछले 2 साल से कोविड के चलते यहाँ ज़िला शोपियान में जो सकाफती सरगर्मियाँ थी उनमें एक जमूद सा पैदा हो गया था। उस जमूद को अब कोविड के SOPs का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। यहाँ सकाफती सरगर्मियाँ हैं, उनकी शुरुआत हमने आज एक नातिया मुशायरा से की है। पुलवामा के पुछल इलाके में हज़रत सैयद अहमद कासिम इंदरावी का सालाना उर्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कोविड की वजह से आज 2 साल के बाद उर्स की तक़रीबात का इनेकाद हुआ। आस्तान आलिया पर गुज़िश्ता शाम से ही दुरूद व अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन ने आस्तान आलिया पर हाज़िरी दी। कश्मीर में अमन व आस्ती के लिए इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गईं। और हमने दुआ की, तमाम लोगों ने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की कि रब्बुल कायनात इस सरे ज़मीन कश्मीर को अमन का गहवारा बनाए और हमारे मुश्किलात और मसाइब जिसके हम शिकार हो रहे हुए हैं हम इनको हल फरमाए, आसान फरमाए। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने टंगमक के मुख्तलिफ इलाकों में बेवाओं, यतीमों और गरीबों में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया तकसीम की। बढ़ती महंगाई और माह रमज़ान को देखते हुए तंजीम ने ज़रूरतमंदों को मदद फराहम की है। SDM गुलमर्ग समीर जान ने 200 बेवाओं में ये राशन किट्स तकसीम किए। ऑर्फन इन नीड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियाज अहमद और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। हमेशा पकनावान शुक्र गुजार तोमुल अत मज ओट तमाम क्या साबन दनबुर शुक्र गुजार। ऑर्फनेज इन नीड का जो कंप्लीट टारगेट है इंशाल्लाह वो तकरीबन पूरे कश्मीर वैली में 4000 फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इफ्तार और सहूर के। जो मैंने यहाँ देखा आई एम सिंपली अमेज्ड और मैं सरप्राइज हो गया कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इतनी फंडिंग है और इतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि जो इतनी मदद कर पाती है और रेगुलर बेसिस पर कर रही है। DDC चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक ने शालाबुग इलाके में एक मेगा हेल्थ मेले का इफ्तिताह किया। इस मेले से कई लोगों ने इस्तेफादा किया। मुफ्त तिब्बी OPD तशख़ीस, टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों जैसे फूड सेफ्टी, आयुष, ICDS, यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स के स्टॉल्स लगाए गए थे। कमिश्नर गांधरबल की वसातों से आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो लोगों तक वो पहुँचे और लोग उसका फ़ायदा उठाए। हम चाहते हैं आने वाले टाइम पे ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाए, बड़े बड़े मेले हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ये स्कीम्स का फ़ायदा लोग तब उठाएंगे जब उनमें अवेयरनेस होगी, जब उनको पता चल जाएगा कि किस स्कीम से हमको क्या बेनिफिट। मेडिकल ब्लॉक घाट डोडा ने महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद के इश्तराक से एक रोज़ा हेल्थ मेला बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। डोडा शहर में मेले लगाने पर दूरफ्तादा देही मकामात से आए मरीजों ने नाराज़गी जाहिर की और कहा कि इंतज़ामिया के ऐसे तर्ज अमल से वो फ़वायद हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। अगर फ़ायदा हुआ 10 टैबलेटें मिली, लेकिन तब तक हमारा 2-2 हज़ार रुपया खर्च आता है गांव से यहाँ तक आने का, तो फिर हमें ये दुगनी कीमत पर पड़ती है। तो मगर हम मजबूर थे कि हम यहाँ आए। अगर ये गांव में होता तो हमें बूढ़ों को, छोटे बच्चों को यहाँ ना आना पड़ता। ये गांव में ही होना चाहिए था, क्योंकि गांव में सब बूढ़े, छोटे, बड़े, औरतें, बच्चे सब उधर मेले में शामिल होते थे और उनको भी इस मेले का फ़ायदा मिलता था। NCD स्क्रीनिंग का स्टॉल है, फिर इसके अलावा डेंटल चेकअप और ये जो बच्चों का स्पेशलिस्ट और आइस चेकअप भी यहाँ पे अलग अलग स्टॉल में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आयुष्मान भारत जो कार्ड है वो भी जनरेट किया। महकमे सेहत ने करापुरा कुपवाड़ा में हेल्थ मेले का इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह DDC चेयरमैन इरफान पंडित ने किया और सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और इन्हें मौके पर ही अद्वियात फराहम की गई। लोगों ने महकमे सेहत की इस काविश की सराहना भी की। हम बहुत स्टॉलों पे चले गए, कहा कि फर्स्ट टाइम उनको पता लगा दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस डिजीज़। मेरे ख्याल में ऐसी अवेयरनेस ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो BMO करालपोरा ने यहाँ ले लिया है। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट,
डायग्नोसिस जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिसिन और फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास फिजिशियन स्पेशलिस्ट है, सर्जन स्पेशलिस्ट है, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास यहाँ पे साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर ने हमारा चेकअप भी किया, अच्छे से किया, वैक्सीन भी लगाया और वो भी अच्छे से किया, और बाकी चीज़ों में भी ये दिया हौसला, बोला ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। महकमे सेहत ने रफियाबाद के डांगी वच में हेल्थ मेले का इनेकाद किया। चीफ मेडिकल अफसर बारामुल्ला, तहसीलदार डांगी वच और SDPO रफियाबाद के अलावा बड़ी तादाद में आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कारकुनान मौजूद थी। सरकारी स्कीमों के बारे में अवाम को आगाही फराहम करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए थे। आधार के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और गोल्डन कार्ड का स्टॉल भी लगाया गया। और अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज़, वो तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चाटूसा में भी हॉस्पिटल बन रहा है वो भी अपग्रेड हो जाएगा, हमारा मरकुट में भी बन रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो जाएगा। क्योंकि हमको पहले डंगी बच्चा जब हेडक्वार्टर ही अपग्रेड हो जाएगा SDH में, बाकी स्टेशन भी आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड हो जाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन गए सारे, जत्थन, कंगरूसा, अभी चाटूसा और पकवाड़ा भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है, उसमें और फैसिलिटीज़ आएंगे। वहीं शांगस सब जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह तहसीलदार शांगस अब्दुल रशीद डार ने किया। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू ने लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉलों का जायजा लिया। BMO शांगस डॉक्टर अशफाक के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। जितने में हमारे LI डिपार्टमेंट से वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स इंस्टॉल किए। आपने देखा कि यहाँ पर योगा सेशन बाज़ाब्ते हुए, यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई, कैटरैक्ट, हमने बच्चों में स्पेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ पर हमने डिफरेंट बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयरनेस दे दी और स्क्रीनिंग कर दी। लद्दाख का महकमे सेहत मुख्तलिफ मकामात पर हेल्थ मेले मुनक्किद करा रहा है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर द्रास में भी 5 रोज़ा UT लेवल हेल्थ मेला मुनक्किद किया गया। आज पहले दिन मेले में दर्जनों स्टॉल्स लगाए गए थे। आयुष्मान और गोल्डन हेल्थ कार्ड्स बनाने की सहूलत फराहम की गई। फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन और फ्री योग प्रोग्राम मुनक्किद कराए जा रहे हैं। सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा भी किया। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा लिया यहाँ पे, तो हमारा यही अपील है कि लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और लोगों जो है इसका फ़ायदा लें, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, तो यही हमारा संदेश है लोगों को कि ये जितने भी एक्टिविटीज़ जो हमारे ब्लॉक में चल रही हैं उनका फ़ायदा लें और उन स्कीम्स का, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स यहाँ पर रखी हुई है, उनका फ़ायदा। वहीं दूसरी जानिब हेल्थ डिपार्टमेंट ने सुरनकोट में एक रोज़ा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। दर्जनों गोल्डन कार्ड्स और माजूरी के सर्टिफिकेट्स इस मौके पर ही जारी किए गए। मुख्तलिफ शुबे हयात ने अपने स्टॉल लगाए। तशखीस के अलावा अदविया के हुसूल की सहूलत फराहम की गई। DDC मेंबर सुहेल मलिक, ADC बशारत हुसैन और SDM सुरनकोट नईमुन्निसा भट्टी भी शरीक रहीं। वहीं जिला उधमपुर की चनानी तहसील में पंचायत सरार के पंचायत घर में एक रोज़ा सेहत मेले का इनेकाद किया गया। ज़रूरी अद्वियात के साथ साथ आने वालों के मेयारी मेडिकल चेकअप भी किए गए। मुख्तलिफ तरीक़े इलाज और मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी यहाँ पर दस्तियाब रखे गए थे। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ सेहत प्रोग्रामों के बारे में लोगों को इस मौके पर जानकारी दी गई।